ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مسئلے تو بہت ہیں، پریشانیاں، مشکلات اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان عقل مند وہ ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے فوکس کس پہ کرنا ہے۔ جس دن اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ پریشانیاں تو 100 ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، لیکن ان میں سے اہم چیز کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ حل سمجھ جائے گا اور وہ اپنے وقت کو اور اپنے انرجی کو، اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج زندگی کے بے شمار مسئلے ہمارے ساتھ، لیکن ہم الجھے ہوئے کس پہ ہیں؟ کن باتوں پر ہم ڈسکس زیادہ کرتے ہیں؟ کون سی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پر آ کر ہمیں تنبیہ کرنا پڑتا ہے۔ جب گھر پر آگ لگی ہو تو آپ آٹے، چاول اور نمک کے لیے جھگڑا نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کی چار دیواری کو محفوظ کر لوں۔ تو مسائل میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، اللہ ہزار بار نہ کرے کسی کے گھر میں اگر آگ لگ گئی اور پورا گھر آگ کے لپیٹوں میں جھلس رہا ہے اور اس گھر کے اندر آپ کا ایک بچہ چھوٹا سا میں پھنس گیا ہے، آپ کسی طرح گھر کے اندر داخل ہوئے اور بچے کو قریب تھا کہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی، بچا سکتے تھے آپ، لیکن ساتھ میں بچے کے قریب میں ایک سوٹ کیس بھی پڑا ہوا ہے جس میں بہت ساری آپ کی رقم، کمائی ہوئی محنت کے پیسے سب اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ آگ اسے بھی پکڑنے والی ہے، ان قریب وہ بھی آگ کی لپیٹ میں پورے مال و دولت جلنے والا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، وقت بہت شارٹ ہے، ایک طرف وہ پیسوں کے اور بہت سارے مال کا سوٹ کیس ہے اور ایک طرف آپ کا عزیز از جان بچہ ہے، کس کو بچانا چاہیے؟ ایک عقل رکھنے والا بندہ صاف سی بات ہے وہ سوٹ کیس کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اپنے جان سے زیادہ پیارے بچے کی جان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ عقل میں اتنی بات تو ہے، اتنا سینس سب کو ہے کہ مال پھر کمایا جا سکتا ہے لیکن جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ اگر بچہ ہمارا بچ گیا تو مال پھر سے آ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کا سینس کام کر گیا، آپ کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے کہ آپ بڑا مسئلہ کون سا ہے، چھوٹا مسئلہ کون سا ہے، اس وقت آپ پہچان گئے اور آپ اپنے بچے کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے اور پیسے گننے پر بیٹھ گئے ہوتے، سوٹکیس اٹھانے پر بیٹھ گئے ہوتے، گویا کہ آپ دنیا کے سب سے بدترین بے وقوفوں میں اور بلکہ سیلفش لوگوں میں، بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اپنے گھر والوں پر بھی ٹرسٹ، گھر والوں کے لیے بھی نہیں جینے والا بندہ بن کر کے سامنے آتے۔ دنیا دار، ہوس پرست، لالچی سب چیزیں آ جاتی ہیں اگر چھوٹے مسئلوں پر آپ اپنی انرجی ضائع کرتے۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس طرح میرے عزیزو آج امت کے بے شمار مسائل ہیں، امت کن کن مسئلوں سے گھری ہوئی ہے، ہمیں ان چیزوں پر ڈسکس کی بجائے آج باضابطہ طور پر مائنڈ ڈائیورٹ کر کے چھوٹے مسئلوں پر لگایا جاتا ہے خاص طور پر۔ اور ہم نے تو ان تمام چیزوں میں بہت سارے علماء کو بھی دیکھا، ان کو جن مسائل کے لیے آج کمر بستہ ہونا چاہیے، پوری قوم اور امت کے لیے ایک مرشد کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے، ان مسائل کو چھوڑ کر وہ بہت چھوٹے سے مسائل میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، چھوٹے سے مسائل میں ایک دوسرے کے اختلافات کو پورے مجمع میں لا کر ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے جو سینس کے خلاف ہے۔ آج امت کے لیے مسائل کتنے بڑے بڑے ہیں، میں مانتا ہوں نشہ عام ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں علم کی کمی بہت زیادہ ہو گئی، اخلاق کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں سود آ گیا ہے، جوا آ گیا ہے، شراب آ گئی ہے، سب آ گیا ہے، ہمارے محلوں میں یہ بھی مسائل ہیں جس سے ہم جوجھ رہے ہیں۔ لیکن ان تمام مسائل میں جو سب سے بڑی آگ لگی ہے وہ ہے عزت مصطفیٰ کی حفاظت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ یہ سب آسانی سے ایک ساتھ نہیں ہوا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا رہا۔ آج جو درندے کھل کر کے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول پاک کی ذات کے خلاف بھونک رہے ہیں، یہ تمہارا لاسٹ سٹیج تھا۔ یہاں آزمائش تمہاری ہے کہ آپ مسائل میں کن مسائل کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں گے۔ تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تمہارا دین ہے، تمہارے نبی پاک کی عزت ہے، جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، پوری کائنات کے لیے وہ جان ہے۔ اگر ان کا نام سلامت ہے تو ہم سب کی زندگی سلامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے، وہ رسول پاک کی امانت بنا کر، امت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر ان کے لیے آپ سیریس نہیں ہو سکے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سیریس
सीरियस बन गए तो गोया कि आप वही काम कर रहे हैं जो मैंने एग्जाम्पल में दिया, मिसाल में दिया। घर पर आग लगी, आप अपने बच्चे को बचाने की बजाय अपने माल की तरफ देख रहे हैं। आज मेरे अजीजों, क्या इख्तिलाफात इस कदर नहीं आम हो गए हमारे यहाँ तो वो भी मामलात हैं कि माँ और बेटे के इख्तिलाफात इतने ज्यादा कि दोनों कोर्ट में जा चुके हैं। सिर्फ छोटी सी बात को लेकर बेटा कटहरे में इस तरफ खड़ा है, माँ उस तरफ खड़ी है, दोनों के वकील अलग अलग हैं और लड़ाइयाँ बड़े जोर शोर से, भाई भाई के हैं, बहन भाई के हैं प्रॉपर्टी को लेकर, और मुद्दतों कोर्ट में 25 साल 30 साल गुजर गए एक टुकड़ा जमीन के लिए, और वो भी ऐसा कि कोर्ट ने पूरी जिंदगी भर तुम्हें घुमाया फिराया, तुम्हारी चप्पल घिस गई, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी नफरतों की दीवारें खड़ा कर रखी थी, तुम्हारे लिए उसकी एक बालिश्त जगह भी जिंदगी में मिल ना सकी, यूं ही दुनिया से चले गए और मर गए। तो जो ला यानी चीजें हैं उसके लिए इतनी एनर्जी जाया करना ये बेवकूफी है। आज मैं यही बात कहना चाहता हूँ, उम्मत को जिन मसाइल की आज जरूरत है उस पर डिस्कस भी हो, उसके लिए लाए अमल भी तैयार करें। लोग आकर के आज ये मसाइल जरूर रखें। देखें, आज मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, इसको आप मेरी तनकीद न समझे और ना ही मैं कोई गुस्ताख हूँ। मैं मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैदाइशी शहदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे घरों से ये गुट्ठी में पिलाई हुई मोहब्बत है, लेकिन मुहर्रम के आते ही जितना एक्टिव हमारे मोहल्ले होते हैं, सारे जगह पर एक जगह 51 देग खिचड़ा बना है, दूसरी जगह कंपटीशन में 100 देग खिचड़े बनाए। 51 देग 100 देग, ठीक है, पकाओ खिलाओ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, खिलाना सवाब है। किसको खिलाना? पेट भरे हुए को खिलाना? यहाँ तो हाल ये है जो खुद घर में खा खा कर मोटे हो चुके वही खिचड़ा खाने भी आ गए। कोई ऐसा बंदा तो हमें नजर नहीं आया जिसके घर में एक रोटी भी नहीं मिलती और वो आकर के खा गया हो तो उसके लिए सवाब ही सवाब है। गुरबा और मसाकीन को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। सरकार गौसे पाक ने तो फरमाया, मैंने सारी नेकियां उलट पलट कर देख लिया, सिर्फ 2 नेकियां ऐसी नजर आई जो रहमान को सबसे ज्यादा महबूब हैं। उन्होंने अपने मलफूजात में लिख दिया है, फरमाते मैंने सारी नेकियां छान कर देख ली, 2 नेकियां जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है, एक भूखों को खिलाना, दूसरा नंगों को कपड़ा पहनाना। लेकिन ये शर्त बताई कि भूखों को खिलाने का मतलब ये है कि जो गुर्बत और अफलास की वजह से खा नहीं पाता। मेरे इस कहने का मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग खिचड़ा नहीं खा सकते, तबर्रुक नहीं खा सकते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाएं, सारे लोग खाएं, लेकिन मेरे अजीजों, हमारा कुल असासा ला करके क्या इन्हीं सारी चीजों पर ही खर्च करना है? उम्मत के लिए ऐसे मसाइल पूरे मोहल्ले में घूम फिर करके हम देख लें, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं मिलता जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ा करके IAS या IPS तक की तालीमात दी जा सके। उसके लिए कोई सोचता भी नहीं, और ना ही कोई ऐसा इदारा मिलता है मोहल्लों में कि बच्चा हमारा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है तो साथ में चल करके हाफिज कुरान भी बन जाए। ढूंढ करके निकालो, नहीं मिलते। हमारी लाखों की एक मुश्त रकम जो है सिर्फ हमारे एक वक्त के खाने में चली जाती, एक वक्त के खाने में। मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जब मसाइल बहुत ज्यादा हैं तो जो इम्पोर्टेंट मसला है उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना चाहिए, उस पर डिस्कस भी हो और उसके लिए अमल भी हो। और एक बात मैं आपको बताऊं, इजराइल की एक प्राइम मिनिस्टर लेडी रह चुकी है, उसका एक इंटरव्यू एक पत्रकार ने, एक सहाफी ने लिया था, जिसको बाद में चल करके कई सालों के बाद लीक किया गया। उसने इंटरव्यू में जो पूछा था उस लेडी से, जो प्राइम मिनिस्टर थी इजराइल की, कहा कि आपकी बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है कि आप एक ऐसी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं जिससे पूरा मुल्क जो है आपके साथ नहीं खड़ा है, पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं वो आपके लिए इत्तेफाक नहीं रखते। क्या बात है? कहा ये वो दौर था जब इजराइल में क्राइसिस थे, माल की कमी थी, लोगों के यहाँ बिजनेस नहीं था, तिजारत नहीं थी और जॉब नहीं थे। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो असलहात की डील कर रही थी, डिफेंस के सामान असलहे खरीद रही थी और उस पर सिग्नेचर हो रहे थे, एग्रीमेंट बन रहे थे। पार्लियामेंट के बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे। आज जरूरत किस बात की है और तुम क्या कर रही हो? खाना पानी इनको नहीं मिल रहा है, इनको खाने पानी का इंतजाम करवाते, ना कि तुम जो है डिफेंस के हथियार खरीदती। उस खातून ने कहा सबकी मुखालिफत झेल लिया लेकिन मुझे जो करना था मैं कर गई। उस पर उस एंकर ने पूछा कि आप ऐसा काम क्यों जिद पर कर रही हैं? सुनो मेरे अजीजों, वो यहूदन है, यहूदी, इजराइल की रहने वाली और
प्राइम मिनिस्टर को कहती है मैं ये काम जो कर रही हूँ इस काम में मैं इंस्पायर हूँ, बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा वो कैसे? कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो इस्लामिक सल्तनत स्टैब्लिश कर दी मदीना तैयबा में, हालात उनके भी उस वक्त ऐसे थे कि एक खजूर पर उनके सहाबा पूरा दिन गुजार लेते थे, गुठली चूस करके रह जाते थे, एक प्याला दूध का मिल जाता तो 10 लोग पी लेते थे। और वो कहती है मैंने उनकी तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी है, जिस दिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस दिन उनकी बीवी के घर हजरत आयशा सिद्दीका के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। जिस दिन हुजूर पाक का इंतकाल हुआ उस दिन चिराग जलाने का तेल भी नहीं था। वो ऐसी सादी जिंदगी तो गुजार गए, लेकिन वो खातून कहती है चिराग जलाने के लिए तेल तो नहीं था, लेकिन सबसे कीमती और सबसे अजीम उस जमाने के 9 तलवारें उनकी दीवार पर लटकी हुई थी। गोया कि उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज दिया था कि खाना एक वक्त का खाकर निगल लोगे, दूसरे वक्त फिर भूख लगेगी, दूसरे वक्त का खा लोगे, तीसरी भूख फिर लगेगी, लेकिन तुम्हारे लिए उम्मत के डिफेंस के लिए जो चीज चाहिए थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की जरूरत को महसूस करके पहले से मैसेज दिया था। वो इजराइली यहूदन कहती आज मेरा ये अमल हो सकता है 40 साल बाद आने वाली मेरी कौम देखकर फख्र करेगी कि हमारे लिए कितनी महफूज पनाहगाह ये बना करके चले गए। मेरे अजीजों, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा, बात ये कह रहा हूँ, ये होती है कौमों की तामीर। आज हम तो खिचड़ों में रहे, खिचड़ा नाजायज नहीं है, खाना चाहिए, अच्छा है, घर में बनाओ, जब मन करे खाओ, लेकिन उसके लिए अपने लाखों रुपए की लागत मोहल्लों में इस तरह से तकसीम करके खत्म कर देना। हाँ, उसको हक बनता है वो हलवा भी खाए, खिचड़ा भी खाए, लेकिन साथ में उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए इमारत भी खड़ी करे, उसको ये हक बनता है। मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक उस्ताद, उनकी ये सोच थी, वो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ। हमारे एक साथी ने हमारी शिकायत की कि हज़रत जो कपड़े पहनना है सारे तलबा को, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये कपड़े पहन लेता है। मेरे बारे कहा ये सदरी पहन लिया या जैकेट पहन लिया, कहा जो स्टूडेंट्स तलबा पहन रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा ये। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सबको बराबर देखना चाहता हूँ, किसको क्या पहनना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था उनको शिकायत करने वालों को, कहा इसकी तरह 4 सफ़े सबक तू भी सुना दे और तू भी ऐसी कपड़े पहन ले। हाँ, अगर किसी काम में तुम पूरे उतरे हुए हो और दूसरा तुम्हारी दीगर जरूरियात भी पूरी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी बड़ी नियाजें करें, लेकिन उस वक्त जब उम्मत की मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी हो रही हो फिर खाना भी खिलाएं, देगे भी चढ़ाएं, अच्छा है, उर्स भी करें। यहाँ हालात तो ये है कि हम यतीमी के हालत में आ गए आज। मियाँ कितने तो ऐसे हमारे मुसलमान कपल्स हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर क्रिश्चियन स्कूल के बाहर खड़े करते हैं और एडमिशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उनको कितनी मर्तबा वहां पर ईसाई नन हो कि पादरी हो ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं, कितनी मर्तबा ऐसी शिकायतें आई। लेकिन क्या करें, एक जगह पर मुझे खुद ये बात याद आती है, हमारे मुक्तदी थे एक हाजी साहब, अपने 2 बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने डाला था, 4वीं और 5वीं के बच्चे, साल का 4 लाख रुपए पे कर रहे थे। और एक बार वो मुझे साथ में लेकर गए दिखाने के लिए, क्या है दिखाता हूँ कितना बेहतरीन है, 45 एकड़ में बना हुआ ये बोर्डिंग स्कूल है, सब कुछ है। मैं गया था, उनके मैनेजर से मैंने पूछा कि शेड्यूल क्या है आपका, बच्चों को कैसे आप ट्रीट करते हैं। उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का पूरा घंटे घंटे का शेड्यूल बताया, उसमें पूजा भी है, योगा भी है, जॉगिंग भी है, सब है। मैंने पूछा सारे बच्चे करते हैं? कहा सब करते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सबको करना है। और जो जिनके बच्चों के लिए हम गए हुए थे वो साल भर से पढ़ रहे थे, मैंने उन हाजी साहब से कहा वो बड़े परहेजगार हैं, एक नमाज भी कज़ा नहीं करते। हमने कहा उनको आप अपने बच्चों को इतनी महंगी पूजा करवा रहे हैं, इतनी दूर ले जा करके। तो खैर उनको ये बात लगी, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा ठीक है हजरत, मैं वहां से निकाल लूंगा, हमारा है कहाँ जहां मैं अपने बच्चों को डालूं। ये भी तो सवाल है, ये भी तो सवाल है। हमने अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई लाया अमल बनाना ही छोड़ दिया है। फिक्र करो मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है। मैं तो यहाँ जब भी आता हूँ हर बार आपके अराकीन सदर साहब बैठते हैं, अक्सर यही प्लानिंग करते भी रहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ प्लानिंग में ही रह गए तो हमारी उम्रें भी प्लानिंग में चली जाएंगी। कर जाओ कुछ ना कुछ, इसलिए कि हमारे बच्चों को जो फल मिलने वाले हैं वही इनकलाब लाएंगे।
اور इलिटरेसिटी इतनी बड़ी हुई है, आप जो देख रहे हैं ना माहौल की खराबी, अक्सर आकर जो शिकायत करते हैं बच्चे नशाखोर हो गए, माँ बाप के नाफरमान, सब बहुत कुछ है, लेकिन सबका इलाज एक है कि इनको इल्म दीन और इल्म दुनिया से रोशनास कराएं, इसलिए कि इल्म तहजीब लाता है, अखलाक लाता है, और इल्म ना हो तो जिहालत के पेट से सब बुराइयां जन्म लेती हैं, हर बुराई वो कर जाता है जिहालत में। और आज हालात ऐसे हैं कि दूसरी कौमें हमारी तरफ दिखा करके ये ताना मारती हैं। अभी कल रात में जिस इलाके में था लखनऊ के करीब, और सुबह लखनऊ से मैं अभी आ रहा हूँ, गए पूरा इलाका मुसलमानों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा है कि गांव में जाने के लिए कोई कार भी जा ना सके, इस तरह से गड्ढे भरे हुए हैं, इतने गड्ढे। और पड़ोस के करीब में छोटा सा गांव है, नॉन मुस्लिम, पक्की सड़कें, सारी चीज। इस पर बात करें तो लोग ये कहते हैं ये तासुब है हुकूमत का, उनके यहाँ ये सब हो जाता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। मेरे अजीजों, हर जगह ऐसा नहीं होता। बात सिर्फ ये है कि तुमने जीने का सलीका खुद ही बना लिया है अपने दिमाग से कि हमें रहना ऐसी है। हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों के सामने कूड़ा करकट का ढेर पड़ा रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमने तो खुद ही माइंड बनाया हुआ है। इल्म आएगा तो अखलाक भी लाएगा, तहजीब भी लाएगा। आप मदीने तैयबा जा करके देखें, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे हसीन, वैसे अकीदतन तो है ही, लेकिन जाहिरन भी जा करके देखें तो उससे पाक और साफ शहर नहीं मिलता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विरासत है जो हमें वहां आज भी नजर आती है। अरे गलियों में चलो तो भी खुशबू आ। ये सिर्फ अकीदत और रूहानियत की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने खुशबू आर्टिफिशियल भी बना करके रखी हुई है कि कोई गुजरे तो इसको यहाँ कहीं महक ना आना चाहिए, क्योंकि मदीने आए तो बंदा ये अखलाक लेकर के जाए कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफाई के लिए और किस कदर अपनी उम्मत को पाक करने की फिक्र रखते थे। आज ये सब मसाइल पर हमें एनर्जी लगाने की जरूरत है, लेकिन हम किन चीजों पर पड़े हुए हैं? हम तो छोटी छोटी सी बातों पर, अरे 2 घड़े पानी अगर हमको ना मिले तो हम तो पैंचे चढ़ा करके झगड़े पर आ गए हैं। हमको अगर छोटी सी जमीन का मसला हो तो हम 25 साल भी लड़ने को तैयार हैं। ये मसाइल नहीं है। और इसी तरह से जो सोशल मीडिया पर आज मुनाजरे का अड्डा बना हुआ है, एक जमात उस जमात पर, उस जमात को इस जमात पर। और अभी एक मौलाना साहब ने मुझसे शिकायत किया, कहा कि कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ ऐसा बयान कर दिया कि इस मस्जिद में न जाएं, ये इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं होगी। हमने पूछा कि क्या उनको तकलीफ किस बात की है? कहा वो ऐसा है कि सिलसिले की लड़ाई है, वो दूसरे पीर साहब के मुरीद हैं, हम दूसरे पीर साहब के मुरीद हैं, लेकिन इस सिलसिले की लड़ाई से हमने पूछा क्या वो सुन्नी है? कहा वो भी सुन्नी, आप सुन्नी, आप भी सुन्नी है, और दोनों आला हजरत के शहदाई हैं। कहा फिर झगड़ा किस बात का? कहा नहीं, वहां सब मेरे खिलाफ उन लोगों ने ये बात कर दी है कि इनके पीछे नमाज नहीं होगी इसलिए कि ये अशरफी हैं, ये फला हैं। मैंने कहा ये तो गनीमत है उन लोगों को, सोचे ईसाई तो नहीं है। इतना तासुब भरता है तो जिहालत से भरता है। और किन मसाइल पर आज तुम लगे हुए हो? यहाँ तो पूरी आग लगाने के लिए दरिंदे कूद रहे हैं और तुम अपने आपस में गरेबान पकड़े हुए हो। क्या आपको पता नहीं है हमारी पूरी जेनोसाइड करने के प्लान बने हुए हैं, नस्ल कुशी, नस्ल खत्म करने के मामला चल रहे हैं। हमारी पूरी नागरिकता, हमारी सिटीजनशिप खत्म करने की बात, आइंदा चल करके इनको वोटिंग पावर तक ना रहे, ये प्लान है सब चीजें। वो सब चीजों को छोड़ करके हम तो किन मसाइल में उलझे हुए हैं। इसीलिए किसी ने कहा, अगरचे मुहावरा हो, तारीख से इसका ताल्लुक है या नहीं, लेकिन ये बात मुझे लगती है कि बगदाद में जब हलाकू हमला करने आया था और पूरे बगदाद की ईंट से ईंट बजा दिया था, तबाह कर दिया था उसने, पूरे बगदाद में 2 लाख से ज्यादा लाशें बिछाई गई थी बगदाद शहर में। लेकिन ये एक मुहावरतन ये बात कही जाती है, जिस वक्त हलाकू बगदाद पर हमला करने आया हुआ था उस वक्त 2 जगह जमातें मुनाजरा कर रही थी मिसवाक के बारे में, 4 इंच की होनी चाहिए कि 3 इंच की होनी चाहिए। ये तारीख से इसका ताल्लुक हो या ना हो, लतीफे के तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन बात मैं ये कहता हूं उसी की मिसल आज चीजें की जा रही हैं। जो अहम मसाइल हैं उनको छोड़ करके जो छोटे मसाइल हैं उन पर हमारी पूरी एनर्जी खत्म की जा रही है। आज कई मुद्दे हैं इस तरह के बात करने के, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल सलीम अता किया है तो फ्यूचर प्लानिंग करें अपने बच्चों के लिए और कुछ न कुछ ऐसी चीजें कर जाएं। एक बात और बताऊं, बिहार में इतने जलसे होते, मैं 365 दिन भी तारीख दे दूं तो भी कम है उनके लिए। हम अभी 2022 की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े जलसे में गए, लाखों का खर्चा करते हैं, पूरी रात भर जलसा होता है। एक रिपोर्टर थे जिन्होंने एनालाइज किया था, वो
मेरे पास एक रिपोर्ट ला करके बताया कि हजरत पूरे साल भर में एक ही स्टेट बिहार में 4000 जलसे हुए, 4000 जलसे, और वहां के रात भर चलने वाले जलसों को मैंने बहुत करीब से देखा है कि इस कदर वहां पर एहतमाम के साथ जलसे करते। मैं जलसों का मुखालिफ नहीं, ठीक है, दीन फैलाने का एक जरिया है, लेकिन होता क्या है, उन्होंने कहा कि कम अज कम एक जलसे में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, उससे कम नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा हमने देखे 10-10 लाख, 15-15 लाख एक रात के जलसे में वो लोग खर्च करते हैं। मिनिमम 5 लाख रुपए खर्च के हिसाब से 4000 जलसों का जब ये रिपोर्ट निकाली गई तो उन्होंने साल भर में एक ही स्टेट में, ये गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2000 करोड़ रुपए रातों में ये खर्च हुए हैं। लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं जलसों वाला आदमी, मुकर्रिर आदमी, रोजाना इधर उधर घूमता हूं, मैं साफ आज ऐलान करना चाहता हूं मेरे अजीज, मैं एक जगह बैठ करके जो पैगाम पहुंचाता हूं, अल्लाह का फजल है, लाखों उसको वैसे ही सुन लेते हैं। बहुत बड़े स्टेज लगाने की, कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं, और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है, और ना ही मैं कहीं पर नजरानी या लिफाफे तय करके जाता हूं, मेरा मामला है नहीं। लेकिन दिल दुखता इस बात पर है, 2000 करोड़ रुपए साल भर में एक स्टेट के अंदर खर्चा हो गए। ठीक है, दीन फैलाने के लिए आपने किए, लेकिन दूसरी तरफ आप पूरा ढूंढ करके निकालो, मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है पूरे स्टेट में, एक भी नहीं है। और एक छोटी सी जमात जो 0.5 में जिनका परसेंटेज आता है हिंदुस्तान में, वो ऐसे धर्म के लोग जिनकी तकरीबन 11-12 यूनिवर्सिटी एक एक स्टेट के अंदर या पूरे हिंदुस्तान को मिलाकर, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, छोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या ये बातों पर मुझे रखना नहीं चाहिए? ये कोई मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं। कहां तुम्हारी रकम जा रही है और किन मसाइल पर एनर्जी खर्च कर रहे हो? रात का जलसा हो तो गया, सुबह इनको पकड़ करके पूछो तो याद भी नहीं क्या बयान हुआ क्या नहीं, आहू करते रहे, 8 दिन के बाद पूरा ही भूल गए। फिर क्या बहुत बड़ा काम किया दीन का, कौन सी तबलीग किया? हाँ, इसकी बनिस्बत, इसके बजाय अगर कोई ऐसा इदारा वहां पर कायम होता तो मैं समझता हूँ ये 4000 जलसे की बजाय 4 भी इदारे हर साल कायम होते रहे, 10 साल के बाद देखो लहलहाता हुआ फसल कायम हो जाए, उम्मत मुस्तफा के लिए एक बहुत बड़ा किला बन जाए, एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए। इसीलिए मैं ये दावत आज पेश करता हूँ कि अपनी एनर्जी ऐसी चीजों पर जाया ना करो जो वक्त की जरूरत नहीं है। उन चीजों में अपना एक एक रुपया खर्च करो जो उम्मत मुस्तफा के फ्यूचर के लिए अच्छा हो। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम जितनी बकिया मानदा जिंदगी है हमारी, हमारा हर पल और हर लम्हा उम्मत मुस्तफा की खिदमत में लगाने की तौफीक अता फरमाए। दीन इस्लाम का हमें सच्चा खादिम बना करके उठाए और दुनिया में भी और आखिरत में भी रसूलुल्लाह का वफादार बनाकर हमें उठाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।